Hello. Okay. So welcome back again and next set of video. Today we're going to talk about something very famous which is been followed in the US stock market. That is the stage analysis by Stan Winstein. Right? There is a book for Stan Winstein in which he explained how to do a stage analysis. So on your screen you can see there is a visual example of a stage analysis. There is a line chart, and this red color line you see on the chart is 30-week moving average. So there are four stages he has explained here. Stage number one is a basing stage, stage number two is advancing stage, stage number three is stopping or distribution stage, and stage number four is the drawdown stage. So in stage you can see we'll understand how these stages will work. So there is a beautiful document here. This is the you can search on Google stage analysis by Stan Vincent. You can find this. So some key components of this stage analysis are we use weekly charts, right? So whenever you are doing the stage analysis, we are using weekly charts. फिर वो वीकली चार्ट पे हम 30 वीक मूविंग एवरेज लगाएंगे, राइट? वी ऐड 30 वीक मूविंग एवरेज, देन वी पुट वॉल्यूम इंडिकेटर एंड स्टॉक मार्केट इंडेक्स. सो अगर आपका इंडेक्स के रिलेटिव आपका स्टॉक कैसे जा रहा है, दैट वी विल सी हियर, राइट? सो दिस इज अ विजुअल एग्जांपल. हम ऐसे ही एनालिसिस करेंगे अब से किसी भी स्टॉक का, अगर हम स्टेज एनालिसिस कर रहे हैं स्टैन विंस्टन के बताए हुए मेथड के हिसाब से. सो स्टेज नंबर वन इज द बेसिंग स्टेज, राइट? सो let us look into some examples of US market. You can see here this is this blue color line. ये blue color का line जो है 30 week exponential moving average दिखाया हुआ है. You can see there is a declining phase, decline कर रहा था, then it has gone sideways, और यहाँ पे वो 30 week moving average के ऊपर stage वन का base बना, उसके ऊपर breakout दिया, right? So from this price around $3, currently it is more than $12 when this chart was taken, right? So this is how the basing you can look for after downtrend, right? This is one more stage one basing. यहाँ पे आप देख सकते हो 30 week moving average के ऊपर breakout होना चाहिए, that is the important part. Then some more important notes on stage one. Volume usually dries up initially in stage one but can expand later in the base as more buyers come in this, and basing in stage one can go on for months or even for years. So basing कुछ महीनों तक चल सकता है या फिर काफ़ी सालों तक भी चल सकता है. सो बेसिंग जो है, जो हमारा वॉच लिस्ट क्रिएट करेगा, जो स्टॉक्स बेसिंग में कर रहे हैं वो हमारे वॉच लिस्ट में रहेंगे. देन स्टेज नंबर टू इज एडवांसिंग स्टेज, right? So this is the stage where we want to be in a particular stock, right? So besides recognizing stage for downtrend, being able to identify stage number two breakout and examine its quality is the most important part of the system. What does stage number two breakout will look like? So आप देख सकते हो ये एक illustrative figure है. You can see stock is in stage number 4 downtrend. 30 वीक मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में था, फिर साइडवेज हुआ, राइट? यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना और वो 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, राइट? ए इज़ द ब्रेकआउट पॉइंट एंड बी इज़ द रीटेस्ट पॉइंट, जब आप फिर से बाई कर सकते हो. और यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स भी देखोगे, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा थे कंपेयर टू द बेसिंग एरिया. दिस इज द आइडियल बाय फॉर इन्वेस्टर इफ ही इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. दूसरा आइडियल बाय है कि सपोज कीजिए कि आपका स्टॉक ऑलरेडी 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट इफ़ यू कैन बाय हियर इट इज़ टू फार अवे फ्रॉम दिस लाइन. तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब वो लाइन के नज़दीक आए एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट. पॉइंट ए इज़ योर ब्रेकआउट पॉइंट. यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स ए पॉइंट पे काफ़ी बढ़िया है. राइट? सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द हाई क्वालिटी स्टेज टू ब्रेकआउट? सबसे पहला है ट्रेंड ऑफ द ओवरऑल मार्केट. ओवरऑल मार्केट भी स्टेज टू के ब्रेकआउट में होगा. मतलब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी, राइट? या फिर सेक्टर. सो सेक्टर दूसरा है सेक्टर. सेक्टर भी ओवरऑल ब्रेकआउट देना चाहिए स्टेज टू वाला. देन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़िया होने चाहिए जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ 30 वीक मूविंग एवरेज ऑन द ब्रेकआउट. So the stock should be above rising 30 week moving average during the breakout. So 30 week moving average है वो rising up होना चाहिए, down नहीं होना चाहिए, right? Then next is resistance. In the stage analysis we are interested in resistance from the previous 2-year trading.
राइट। पिछले 2 साल का रेजिस्टेंस हमें देखना है। So in his study, past big winner stock, almost all of them are trading with no overhead resistance. मतलब ऊपर कोई पिछले साल का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए जहाँ पे सेलर्स खड़ा हो अपना माल बेचने के लिए। देन रिलेटिव स्ट्रेंथ, द स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी, राइट। स्टॉक आउट परफॉर्म करना चाहिए, इसमें S&P लिखा हुआ है बट हम निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं। एंड देन साइज ऑफ प्रीवियस स्टेज 1 बेस, तो कितना लंबा बेस है, कितने महीनों तक चला है या कितने सालों तक चला है। सो द बिगर द स्टेज 1 बेस, द लेस रेजिस्टेंस स्टॉक विल हैव, राइट। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, जितना लंबा बेस 1 होगा, उतना ही बढ़िया ब्रेकआउट और अच्छा मूव देगा हमारा स्टॉक, राइट। सो दिस इज द कॉपी ऑफ अ बुक, स्टेन विंस्टन, सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल्स एंड बेयर मार्केट, राइट। सो ये कुछ कोट्स है, यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट, राइट। सो ये हो गया हमारा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेज 2 ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे बिग वॉल्यूम इंक्रीज ऑन द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ, 30 वीक मूविंग एवरेज टर्न्स अप एंड स्टॉक एडवांस अबव द मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ पे भी 30 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। सिमिलरली सेम एग्जांपल स्टेज 2 ब्रेकआउट, तो आपको क्या देखना है, बेस बना होना चाहिए, 30 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ स्लोप करना चाहिए एंड ब्रेकआउट होना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम्स। Then stage 3 is consolidation or topping stage. This is a very dangerous stage to be buying any particular stock. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टॉप टॉप बन रहा है, उसके बाद से स्टेज 4 स्टार्ट होगा ही होगा। तो कैसे पता चलेगा आपको, यू कैन सी फ्लैटनिंग 30 वीक मूविंग एवरेज, 30 वीक मूविंग एवरेज जो राइजिंग हो रहा था स्टेज 2 में, वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉक जैसे ही उसके नीचे आएगा और ये एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इट इज़ इन कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड। दिस इज अनदर एग्जांपल, एक हॉरिजॉन्टल बेस बना और स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। देन स्टेज 4 इज अ डिक्लाइनिंग स्टेज। बहुत ही सावधानी रखनी है कि यू नेवर बाय एनी स्टॉक इन डिक्लाइनिंग स्टेज, चाहे कितना भी सस्ता स्टॉक क्यों ना मिल रहा हो, वी नीड टू वेट फॉर अ बेसिंग टू फॉर्म, राइट। सो दिस इज द सम ऑफ द एग्जांपल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट पे 30 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ डाउन साइड पे और ये स्टेज 4 स्टार्ट हो गया। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, राइट। सो सम ऑफ द की पॉइंट्स क्या है, अवॉइड बाइंग स्टॉक्स इन स्टेज 1 बेस until they break out into stage 2 advance, as sometimes capital can become tied up when the stock base for a long period of time. So क्या होता है कि स्टेज 1 में अगर हम बाय कर लेते हैं तो वी डू नॉट नो कि कितने टाइम तक वो स्टेज 1 में रहेगा, ब्रेकआउट कब आएगा, तो आपका कैपिटल फंसा रहेगा उसमें। सेकंड की पॉइंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग कम्स ऑन द ब्रेकआउट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। ये बेस्ट टाइम होता है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। Then stage 3 consolidation can either form a top and leads to stage 4 decline or simply a trading range that develops into another stage 2। तो अगर stage 3 बन रहा है तो उसमें 3 चांसेस हो सकते हैं, stage 4 डिक्लाइन हो सकता है या फिर वो एक रेंज बना रहा है ताकि आगे जाके वो फिर से बेस बना के स्टेज 2 एडवांस कर सके। देन नेवर होल्ड स्टॉक इफ इट इज़ इन स्टेज 4 डिक्लाइन एज इट कैन लीड टू मेजर लॉसेस। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको ये वीडियो देख के एनालिसिस करके पता चले कि वो स्टेज 4 डिक्लाइन में है, तो ट्राई टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक एज सुन एज पॉसिबल। एंड लास्ट वन इज द स्टेज ऑफ ओवरऑल मार्केट हैज़ बिग इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक सिंस मोस्ट स्टॉक्स फॉलो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो ये स्टेज एनालिसिस हमने स्टॉक का तो कर दिया, बट सेम चीज़ हमें मार्केट की भी करनी है, जैसे निफ्टी कौन से स्टेज में है, क्योंकि कई बार वो बहुत ही प्रभावित करता है हमारे अपने स्टॉक को, मूवमेंट को। नाउ यूजिंग दिस सेम नॉलेज, द सेम स्टेज एनालिसिस जो यहाँ पे दिया हुआ है, 30 वीक मूविंग एवरेज हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि कौन से स्टॉक आज हमारे रडार में है, राइट। सो आज जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो पहले तो मैं अपना जो जर्नल मेंटेन करते हैं वो आपको दिखा दूँ, राइट। फिर से हमारा कैपिटल होगा 1,00,000 रुपीज़। तो जो स्टॉक्स है वो ये 5 स्टॉक्स है।
फर्स्ट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइसर मोटर्स, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ज्योति लैब। इसमें से एक ऑटो सेक्टर के है, दो है एफएमसीजी सेक्टर से और दो है बैंकिंग सेक्टर से, राइट। सो लेट अस सी वन बाय वन। लेट अस फर्स्ट सी चार्ट फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। This is the weekly chart of Hindustan Unilever. You can see it is clearly in uptrend for last, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद 2017 से कंटिन्यूसली 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे फिर नीचे आया था, अगेन इट वेंट डाउन, एंड अगर आप देखें यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद विच इज़ इन सितंबर 21, अक्टूबर में उसने 30 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, विच इज़ दी ग्रीन कलर लाइन। लेट अस रिमूव अदर लाइंस। यस, सो 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, राइट। तो अक्टूबर में जब नीचे आया तब वो प्राइस था अराउंड 2500 रुपीज़। नीचे आने के बाद इट वेंट टू अराउंड 1900 रुपीज़। अब अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का प्राइस एक्शन देखें, सो एक रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया है, छोटा सा बेस बना के। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2021 का, राइट, अबव विच द प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड 2450 के आसपास उसका रेजिस्टेंस था जो उसने ब्रेक किया है। प्लस वो ब्रेकआउट कहाँ पे आया है, 30 वीक मूविंग एवरेज के पास आया है, और ये 30 वीक मूविंग एवरेज अगर आप देखो वो ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है। 30 वीक मूविंग एवरेज इज टर्निंग अप, राइट। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इफ़ यू कैन कैच। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। सेक्टर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, स्टेज सेक्टर एनालिसिस किया था, जिसमें एक सेक्टर था जो अपना मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा था। दैट इज़ द सेक्टर इज़ एफएमसीजी सेक्टर, राइट। सो एचयूएल हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा ओवरहेड सप्लाई की जो बात की है 2021 का अराउंड 2800 रुपीज़, राइट। सो 2800 रुपीज़ का सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा। यू कैन ईजिली गेट दिस टारगेट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो सबसे पहला स्टॉक है आज हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम क्या कर रहे हैं, स्टेज एनालिसिस करके जो ब्रेकआउट के नज़दीक है उसको बाय करने का ट्राई करेंगे। सो सबसे पहला स्टॉक था दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर। देन सेकंड इज आइसर मोटर्स। सो ये हमारा वीकली चार्ट है आइसर मोटर्स का, तो इसमें भी ब्यूटीफुल बेस यहाँ पे बना हुआ है। आप देखोगे 2021 जनवरी से लेके 2022 जुलाई तक एक साइडवेज बॉक्स बना हुआ है, ब्यूटीफुल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। बट अब यहाँ पे आप देखोगे द वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड कमिंग, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर 3046 आज का क्लोज है। हॉरिजॉन्टल रेंज है हमारा 3018, तो अराउंड 3020 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो 2-3 बार वहाँ पे आके स्टॉक नीचे चला गया था, राइट। आज उसने बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स के साथ, अगर मैं डेली चार्ट पे अगर देखूँ, यहाँ पे देखें आप नीचे वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं जब ये 3018 का रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया, राइट। तो वीकली चार्ट पे वापस आता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल 30 वीक मूविंग एवरेज था वो स्लोपिंग अपवर्ड कर रहा है। सो अगेन परफेक्ट स्टेन विंस्टन स्टेज 2 ब्रेकआउट कैन क्वालिफाई, और सेक्टर भी अच्छा मोमेंटम में है। सो आगे जाके इसमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखें अगर मंथली चार्ट पे, तो रेजिस्टेंस नेक्स्ट कहाँ पे मिल सकता है, सो अराउंड 3250 एक हाई बना था 2017, राइट। सो 2017 रेजिस्टेंस हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल का रेजिस्टेंस जो है वो वैलिड गिना जाता है। तब तक जो बायर होगा ऊपर के भाव पे वो बेच के लॉस बुक कर दिया होगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। सो नॉट मच ओवरहेड सप्लाई रिमेनिंग नियर दी टॉप, सो देयर इज़ अ ब्लू स्काई टेरिटरी अवेलेबल फॉर आइसर मोटर्स, जो हमारा आज का दूसरा स्टॉक था, राइट। So second stock was Eicher Motors.
देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा इंडियन बैंक, राइट। सो इंडियन बैंक, बैंकिंग सेक्टर में आज बहुत ही अच्छा मूव देखा, कुछ न्यूज़ आया था, बट लेट अस नॉट फोकस ऑन द न्यूज़ बिकॉज वी आर क्लियरली वाचिंग द चार्ट। सो इंडियन बैंक में क्या दिख रहा है हमें, वीकली चार्ट पे आएंगे। लेट अस कम टू द वीकली चार्ट ऑफ इंडियन बैंक। वाओ, देखें यहाँ पे परफेक्ट स्टेज बेसिंग यहाँ पे हो रहा है। स्टेज 4 ड्रॉडाउन यहाँ पे था, राइट। दिस इज स्टेज 4 ड्रॉडाउन, राइट। हाई बना था अराउंड 400 रुपये के आसपास और लो बना अराउंड 41 रुपीज़ वहाँ, राइट। बिलो दी 30 वीक मूविंग एवरेज कभी भी नहीं आना है स्टॉक में, ये इस चार्ट से हमें पता चल रहा है बहुत ही क्लियरली। अब अगर आप देखें, सबसे पहला ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला था 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास, राइट। जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम्स, यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट ब्रेकआउट हियर, ये वाला, राइट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, राइट। देन उसके बाद वो कंटिन्यूसली 30 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ जा रहा है, राइट। नाउ अगेन इट हैज़ कम बैक टू 30 वीक मूविंग एवरेज और एक बहुत ही अच्छा बेस बना रहा है, राइट। वेरी गुड बेस फॉर्मेशन इज हैपनिंग हियर। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें दिया है स्टॉक ने, लाइक दिस, राइट। सो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और आसानी से 190 200 प्लस भी जा सकता है ये स्टॉक अगर 190 186 187 क्रॉस करता है तो, राइट। सो इंडियन बैंक हमारा तीसरा स्टॉक होगा, बहुत ही अच्छा स्टेज 3 ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, प्लस स्लॉपिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। सो इंडियन बैंक हमारा तीसरा स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक अगेन बैंकिंग सेक्टर से है, दैट इज फेडरल बैंक, राइट। बहुत ही बढ़िया, इसमें भी सेम बेसिंग हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर अ ड्रॉडाउन ऑफ स्टेज 4। सो लेट अस जूम आउट अ बिट, राइट। तो ये स्टेज 4 यहाँ पे एक ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला था। आइडियल बाई प्राइस अगर हम देखें तो एक यहाँ पे बाइंग प्राइस था अराउंड 61 रुपीज़ के आसपास, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट। अगेन इट केम अप, रीटेस्ट किया वो 30 वीक मूविंग एवरेज को, अगेन ऊपर गया 30 वीक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया, फिर अगेन इट हैज़ गॉन अप एंड यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है जो रेजिस्टेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, बट सेक्टर इज़ इन मोमेंटम। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है फेडरल बैंक, आने वाले कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है बिकॉज दी 30 वीक मूविंग एवरेज हैज स्टार्टेड स्लोपिंग अपवर्ड। एंड आज हमारा लास्ट कैंडिडेट है विच इज़ अगेन फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर विच इज़ द ज्योति लैब, राइट। बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है यहाँ पे, राइट। सो बेस के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है अराउंड 160 रुपीज़ के आसपास और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। दिस इज़ द 30 वीक मूविंग एवरेज, फ्लिप फ्लॉप हो रहा था, राइट। और अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ बेस, यस, हॉरिजॉन्टल बेस अराउंड 160 के आसपास एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, दैट इज़ इन दी ज्योति लैब्स, राइट। सो ये पांच हमारे आज के स्टॉक्स हो गए जो हमने स्टेन विंस्टेंट के मेथड से फाइंड किए 30 वीक मूविंग एवरेज। ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, राइट। तो ये जो पोर्टफोलियो बना इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर। नाउ अगेन सेम मेथड भी फॉलो, कितने शेयर्स परचेज करने हैं तो हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे 20,000 ईच, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 8% फ्रॉम द बाइंग प्राइस। सो अगर जैसे ही 8% बाइंग प्राइस के नीचे आएगा यहाँ पे हमें सेल दिखाई देगा, राइट। सो दैट्स इट। ये 5 स्टॉक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है यू कैन इन्वेस्ट इन दिस 5 स्टॉक एंड दिस इज डोंट फॉरगेट दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट
ऐसा नहीं है कि आज परचेस किया और कल बढ़ गए, राइट। सो ये हो गया आज की बात। कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसका परफॉर्मेंस देख चलते हैं, एक दिन में कितना रिटर्न मिला हमें, राइट। तो ये था हमारा कल का जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था एबीबी में हमने 8 शेयर्स खरीदे थे और उसमें हमें ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा आज के दिन में। सीमेंस में 47 रुपीज़ के आसपास का लॉस दिखा रहा है। देन तीसरा स्टॉक था मोंटे कार्लो, जो अराउंड 0.76% का प्रॉफिट दिखा रहा है। एलिकॉन 294 हमने बाइंग प्राइस था और 317 पे क्लोज हुआ है, तो अराउंड 8% का प्रॉफिट हुआ है एक ही दिन में इस स्टॉक में। देन टीटागढ़ वैगन अराउंड 2% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे 2110 रुपये का हमें प्रॉफिट मिला है सिर्फ एक दिन में, राइट। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, राइट। मार्केट भी कुछ ऐसा खास था नहीं, आज साइडवेज ही था, राइट। सो दिस इज़ द आर्ट ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। अब अगर आप अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करोगे, सही टाइम पे एंट्री करोगे, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। सो आज हमने स्टैन विंस्टन की मेथड से 30 वीक मूविंग एवरेज लगा के वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के स्टेज एनालिसिस करना सीखा। आई होप आपने खुद से भी कुछ सीखा होगा और आप ये मेथड फॉलो करके इंडिपेंडेंटली भी स्टॉक एनालिसिस कर पाओगे, राइट। मेरा मेन पर्पस यही है कि आप खुद से इंडिपेंडेंट बनो और एनालिसिस करके अपना इन्वेस्टमेंट खुद करो, ना कि किसी के टिप्स के ऊपर डिपेंड करो, राइट। So with this, we conclude this session, and I'll again come up with some new learning, some new stocks. Thank you so much for watching. जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। विल सी यू अगेन in the next session.